Hello students, ମୁଁ ସର୍ବଜିତ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆୱାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କନସେପ୍ଟ ନେଷ୍ଟ। ତ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ଲାସ୍ 10 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଏକ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବୃତ୍ତ ଏବଂ ଏହାର କିଛି ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଏବଂ ଉପପାଦ୍ୟ 9। ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଚାପ୍ଟରର ପାର୍ଟ 2। ତ ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ 1। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଜିଆ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିକଟତର ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ସାମାନ୍ୟ କଥନ ଦେଖି ଚିତ୍ରଟି ଅଙ୍କନ କରିବା। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ, ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା, ବୃତ୍ତର ନାଁ ଦେବା କ'ଣ ଏସ୍ ଏବଂ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେବା ଓ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର କେତୋଟି ଜିଆ ଅଛି? ଦୁଇଟି ଜିଆ। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କ'ଣ, କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ତ ଦୁଇଟି ଜିଆ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଜିଆ ଏବଂ ଗୋଟେ ଜିଆ ଅଙ୍କନ କରିବା କେନ୍ଦ୍ରଠୁ ଦୂରରେ। ପାଖ ଜିଆର ନାଁ ଦେବା AB, ଦୂର ଜିଆର ନାଁ ଦେବା CD। ନିକଟତର ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର କହିଲା କ'ଣ, ଯେଉଁ ଜିଆଟି ଦୂରରେ ଅଛି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିଆଟି ପାଖରେ ଅଛି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟଠୁ କ'ଣ ହେବ, ଛୋଟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲମ୍ବ ଅଙ୍କନ କରିବା EF। ତ OE ଲମ୍ବ ହେଲା AB ଜିଆ ପ୍ରତି, OF ଲମ୍ବ ହେଲା CD ଜିଆ ପ୍ରତି। ବୁଝିହେଲା? OE ଲମ୍ବ ହେଲା କାହା ପ୍ରତି? AB ଜିଆ ପ୍ରତି। OF ଲମ୍ବ ହେଲା CD ଜିଆ ପ୍ରତି। ତ ଆମେ ଦେଖି କୁହ, OE ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କମ୍, OF ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଧିକ। ଏଇଟା ଆମେ ଚିତ୍ରରୁ ଜାଣିପାରୁଛେ। ତ ଆସ ତଥ୍ୟ ଲେଖିବା। S ବୃତ୍ତରେ O କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ, AB ଓ CD ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଦୁଇଟି ଜିଆ। ବୁଝିଲା ପିଲେ? ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ, OE କାହା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ? AB ପ୍ରତି। एंड OF କାହା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ? CD ପ୍ରତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ, OF ର ଲମ୍ବ OE ର ଲମ୍ବ, OF ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ OE ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ। ତ OF ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ OE। ଦତ୍ତ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ପ୍ରାମାଣ୍ୟକୁ। ତ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, କେନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିକଟତର ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର। ତ କେନ୍ଦ୍ରଠୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଜିଆ କେଉଁଠି? CD। କେନ୍ଦ୍ରଠୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଆ କେଉଁଠି? AB। ତ କ'ଣ କଲା, CD ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ AB ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଠାରୁ କମ୍। ତ CD ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଲେସ୍ ଦେନ୍ କାହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେବ? AB ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅଙ୍କନ। ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ପରେ ଆମେ କରିବା ଅଙ୍କନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ କରିବା। ତ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖ, OA ବାହୁକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା ଏବଂ OC ବାହୁକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ତ ଅଙ୍କନରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା, OA ଓ OC ଅଙ୍କନ କର। ଦେଖିଲ ପିଲେ, ଦୁଇଟି ବାହୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଅର୍ଥାତ୍ OA ଏବଂ OC ବାହୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ଦୁଇଟା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଙ୍କନ ହେଲା। সেই সমকোণী ত্রিভুজ নাম କ'ଣ ହେଲା? OEA সমকোণী ত্রিভুଜ ଏବଂ OFC সমকোণী ত্রিভুଜ। ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖ ଆସ ପ୍ରମାଣ କେମିତି କରିବା। ତ ଲେଖ ପିଲେ, ପ୍ରମାଣ। ତ୍ରିଭୁଜ OEA ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ OFC ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆମେ ପିଥାଗୋରାସଙ୍କ ନିୟମ କ'ଣ ଜାଣିଛେ? P ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ B ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ H ସ୍କୋୟାର। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ, OE ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ AE ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ OA ସ୍କୋୟାର। ଆକୁ ଦେଇଦେବା ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ 1। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? OE ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ AE ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା, OA ସ୍କୋୟାର। ସେହିଭଳି ଭାବରେ 1 ସେକେଣ୍ଡ, ସେହିଭଳି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, OCF ତ୍ରିଭୁଜରେ OF ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ CF ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ, OC ସ୍କୋୟାର। ଆକୁ ଦେବା ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ 2। ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇଲେ ଏଇଟା? ପିଥାଗୋରାସଙ୍କ
नियम अनुसार कोट पाइले एटा में पिथागोरास को नियम। पिथागोरास को नियम हम कौन कहूँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर जोठारे पी हूँ उच्चता बी हूँ भूमि एवं एच हूँ कौन कर्ण। बर्तमान देख किंतु आम जानचु कौन किंतु ओ ए इक्वल टू ओसी हाँ कि नहीं मत कह ओ ए इक्वल टू ओसी कौन पाई हम ना एक वृत्तर व्यासार्ध ओ ए एवं ओसी होचंदी कौन गोटे वृत्तर व्यासार्ध हाँ कि नहीं ओ ए एवं ओसी कौन गोटे वृत्तर व्यासार्ध ता माने कौन हो ओ ए रो स्क्वायर इक्वल टू ओ सी रो स्क्वायर हो कि नहीं मत कह जदि ओ ए एवं ओसी गोटे वृत्तर व्यासार्ध हेले तेबे ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर हो तो नेक्स्ट देख आम ओ ए स्क्वायर जगह लिखिपर कौन ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर आम ओ ए स्क्वायर बदले कौन लिखले ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर जगह आम कौन लिखा ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर बुझीगला। तो आम नेक्स्ट कौन करवा सी एफ स्क्वायर को आम बाँ पट को नहीं आसवा एवं ओ ई स्क्वायर को आम कौटी नहीं जावा डाहाण पट को नहीं जावा तो रहा कौन बाँ पटे ए ई स्क्वायर सी एफ स्क्वायर बाँ पट को आसले कौन है माइनस सी एफ स्क्वायर इक्वल टू डाहाण पटे थिला कौन ओ एफ स्क्वायर ओ ई स्क्वायर डाहाण पट को गले कौन हो माइनस ओ ई स्क्वायर आम देख जस्ट ये पिले ओ एफ ग्रेटर देन ओ एफ ग्रेटर देन ओ ई अर्थात ओ एफ बड़ एवं ओ ई सान जदि आम ओ एफ रु ओ ई माइनस करवा तो यह कौन हम ग्रेटर देन 0 हेबो ताहले जदि आम ओ एफ स्क्वायर रु ओ ई स्क्वायर वियोग करवा ता भी कौन हम ग्रेटर देन कौन हम 0 बुझीगला। जदि ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होची ताहले ए ई स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर केते हेबो ऑब्वियसली से भी ग्रेटर देन कौन हम 0 तो लिखिदबा ए ई स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर कौन हो ग्रेटर देन 0 जदि ए स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तेबे ए स्क्वायर ग्रेटर देन कौन हो सी एफ स्क्वायर बुझीगला कि नहीं। तो आम ये बर्तमान कौन लिखा क्वालिटी लिखिदे पार सी एफ स्क्वायर लेस देन कौन हो ए स्क्वायर ठीक अच्छे जदि सी एफ स्क्वायर इक्वल टू लेस देन ए स्क्वायर है तो सी एफ लेस देन कौन हो ए हाँ कि नहीं तो सी एफ कौन हो लेस देन ए तो आम उभय पार्श्व 2 गुण दबा 2 सी एफ लेस देन कौन हो 2 ए बुझेगा। तो 2 सी एफ मूल्य के तुम देख आम जाने उपपाद्य 7 रे सी एफ कौटा ए बाहु उपपाद्य 7 जाने केन्द्र ठारू व्यास भिन्न एक ज्या प्रति अंकित लंब उक्त ज्या को समद्विखंड करे तो सी एफ जहाँ डी एफ सी कि नहीं सी एफ जहाँ डी एफ सी कि नहीं तो दुईटा सी एफ मिसीगले कौन हो सी डी हो दुईटा सी एफ मिसीगले कौन हो सी डी हो कि नहीं लेस देन ए को देख बर्तमान केन्द्र ठारू व्यास भिन्न एक ज्या प्रति अंकित लंब उक्त ज्या को समद्विखंड करे तो ए इक्वाल टू बी कि नुहे ए इक्वाल टू बी तो दुईटा जाक ए मिसीगले कौन हो ए बी हो कि नहीं तो सी डी लेस देन कौन होगा ए बी तो आमको प्रामाण्य कौन मागिल देख लो पे सी डी लेस देन कौन मागी सी डी लेस देन ए बी मागी कि नहीं सी डी लेस देन कौन मागी ए बी तो आम प्रमाण करदे कौन सी डी लेस देन ए बी आम उपपाद्य कौन होगा प्रमाण होगा नोट डाउन कर दिए पे अनुसिद्धांत 2 यार सामान्य कथन कौन गोटे वृत्तर दुईटी ज्या मध्य क्षुद्रतर ज्याटी केन्द्र ठारू अधिक दूरवर्ती तो प्रथम आम कौन करवा सेम काम सामान्य कथन देखी चित्र अंकन करवा तो गोटे वृत्त ने वृत्तर ना दे एस यार केन्द्रबिंदुर ना कौन दबा ओ दुईटी ज्या मध्य क्षुद्रतर ज्याटी तो गोटे ज्या आम बड़ ज्या अंकन करवा एवं गोटे कौन करवा छोट ज्याटी अंकन करवा बड़ ज्यार ना दे ए बी
छोट जार ना देले कौन CD। ठीक अच्छे लंब अंकन करवा ओ ई क्या प्रति एबी प्रति ओ एफ क्या प्रति CD प्रति। तो आम दत्त लिखा बर्तमान दत्तर आम कौन लिखा सेम जिनस एस वृत्त रे ओ केंद्रबिंदु। ठीक अच्छे ए बी ओ सी डी व्यास भिन्न दुईटी ज्या एवं कार दैर्घ्य बेसी जना पड़ुची ए बी रो दैर्घ्य सी डी रो दैर्घ्य टू कौन अधिक। नेक्स्ट टाइम कौन लिखा ओ ई लंब कार प्रति ए बी ज्या प्रति एवं ओ एफ लंब क्या प्रति सी डी ज्या प्रति। दत्त पर आम लिखा प्रामाण्य आमको कौन प्रमाण करने हम ना क्षुद्रतर ज्याटीर दैर्घ्य क्षुद्रतर ज्याटी केन्द्र ठार अधिक दूरवर्ती क्षुद्र ज्याटी क्योंटी सीडी अर्थात तार दूरता केते ओ एफ रो दूरता ओ ई रो दूरता ठारू कौन अधिक क्षुद्रतर ज्या कौटी सीडी तार दूरता केते ओ एफ बृहत्तर ज्या क्योंटी एबी तार दैर्घ्य केते ओई अर्थात ओ एफ रो दैर्घ्य ओ ई रो दैर्घ्य ठारू अधिक एटा को हम कौन करिया हम प्रमाण करिया हम तापाई आम कौन करवा सेम गोटे अंकन करवा कौन अंकन करवा ओ ए अंकन करवा ओ सी अंकन करिया फल आमर कौन है दुईटी समकोणी त्रिभुज अंकन हो गला। तो लिखा आम ओ ए ओ सी अंकन कर आम कौन अंकन कले ओ ए एवं ओ सी अंकन कले अंकन पर बर्तमान आम आसवा प्रमाण अंकन पर आम आसवा प्रमाण आम अनुसिद्धांत एक जमिति प्रमाण करते एक्जाक्ट से भाया अनुसिद्धांत दुई प्रमाण हेब। तो देख पे ये दुईटी समकोणी त्रिभुज है दुईटी समकोणी त्रिभुज ना कौन ओ ई ए गोटे समकोणी त्रिभुज एवं ओ एफ सी समकोणी त्रिभुज। तो लिखा त्रिभुज ओ ई ए एवं त्रिभुज ओ एफ सी समकोणी त्रिभुज रे समकोणी त्रिभुज में पिथागोरस का नियम पढ़चे सेटा कौन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो आम लिखिपर कौन ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर इक्वल टू कौन हो ओ ए स्क्वायर आपको देते आम इक्वेशन 1 तापर लिखा कौन से भाई भाव से भाई कौन है त्रिभुज ओ एफ सी रे वर्तमान ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। बुझीपार कि नहीं देख त्रिभुज ओ ई ए रे त्रिभुज ओ ई ए कौन गोटे समकोणी त्रिभुज से ओ ई कौन भूमि ए कौन उच्चता ओ हूँ भूमि ए हूँ तुम जहाँ को जहाँ नहीं पार कहीं आम ये थीटा ना तो आम पी भी जहाँ को नहीं पार एवं ओ ए हूँ कौन कर्ण तो कर्णर दैर्घ्य अर्थात ओ स्क्वायर इक्वल टू कौन हो ए स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर से भाई भाव ओ एफ सी त्रिभुज रे ओ एफ स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर कौन हो ओ सी स्क्वायर। बर्तमान किंतु आम जाचु कौन किंतु आम जानू आम कौन जानचु ओसी बाहु इक्वल टू ओ ए बाहु कौन पाई ओसी बाहु इक्वल टू ओ ए बाहु काली आम पढ़ुचे ना एमाने होचंती गोटिए वृत्तर व्यासार्ध गोटिए वृत्तर व्यासार्ध आम गत काली भिडियो देखते गोटे वृत्तर असंख्यटी व्यासार्ध थिले मध्य सेमानकर दैर्घ्य केते हो समान हो तो ओसी एवं ओ एर दैर्घ्य कौन है समान है जदि ओसी इक्वल टू ए है तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर है कि नहीं मत कहल जदि एक्स इक्वल टू वाई तब एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है
से ही भाव जदि ओसी इक्वाल टू ओए हुए तेज ओसी स्क्वायर इक्वाल टू ओए स्क्वायर होगा। तो बर्तमान आम ओसी स्क्वायर जगह ता भैल्यू ओसी स्क्वायर भैल्यू पुट करवा। ओसी स्क्वायर इक्वाल टू केते ओएफ स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर इक्वाल टू ओ ए स्क्वायर जगह ता भैल्यू पुट करवा। ओ स्क्वायर भैल्यू केते ओ ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। बुझीगला पिले। तो नेक्स्ट स्टेप को आस आम जानले कौन ओ एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर इक्वाल टू ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आम ओ एफ रंग किए ओई ताले ओ एफ और ओई को गोटे पार्श्व को आनिबा। तो ओ एफ स्क्वायर बाम पार्श्व काले कौन हो ओ माइनस ओ स्क्वायर इक्वाल टू दक्षिण पार्श्व कौन थिला ओ ए स्क्वायर। तो ता पाखु के पड़ेबो माइनस सी एफ स्क्वायर। ठीक अच्छे। तो आम बर्तमान लिखा ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर इक्वाल टू तो देख लो पे यही वृत्तर केन्द्र व्यास भिन्न एक ज्या प्रति अंकित लंब उक्त ज्या को समद्विखंड करे। आम यहाँ कौन पढ़े उपपाद्य 7 पढ़े। तो ए दैर्घ्य ए बी ज्यार दैर्घ्य अधा हे कि नहीं ए दैर्घ्य कहार अधा हे ए बी ज्यार। तो आम ए को लिखिपर कौन ए बी बाय 2 स्क्वायर ए बी बाय 2 स्क्वायर माइनस से ही भाई आम सी एफ को केमती लिखिपर सी डी बाय 2 स्क्वायर। यह कौन सी डी पावर अधा कि नहीं सी डी बाय 2 स्क्वायर। तो बर्तमान आम आगे टे एक्सपांड करवा ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर इक्वाल टू ए बी स्क्वायर केते ए बी स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर केते हेबो 4 माइनस सी डी स्क्वायर केते सी डी स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर केते हेबो 4। बुझीगला पिले। तो बर्तमान दक्षिण पार्श्व आमर केते कमन आसीबो देखो ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर बाम पार्श्व थिला इक्वाल टू दक्षिण पार्श्व आमर केते आसीबो 1/4 कमन आसीबो 1/4। तो रहिला केते ए बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। एठी पिला माने गोटे ट्विस्ट देखो आमे दत्तर लिखिचे कोन ए बी इज ग्रेटर देन केते सी डी ए बी इज ग्रेटर देन केते सी डी। ताहले ए बी रु सी डी वियोग कले केते हबो निश्चय भाबे 0 अधिक हबो। जदि ए बी रो मूल्य सी डी रो मूल्य रो अधिक हैला ताहले ए बी माइनस सी डी केते हेबे ऑब्वियसली 0 अधिक हेबे। ताहले कोन ए बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर भी कोन हबो 0 अधिक हबो। बुझीगला कि नहीं देख आउथरे जदि x बड़ है क्या वाई ठू ताले x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 हम कि नहीं। से ही भाव जदि ए बी ग्रेटर देन क्या है सी डी ठू ताले ए बी माइनस सी डी कौन हम ऑब्वियसली भाव ग्रेटर देन 0 हम ता माने कौन हो ए बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर ता भी कौन हम ग्रेटर देन 0 हम। तो 1/4 ए बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर मूल्य कौन हो ग्रेटर देन 0। जदि ए बी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तार अर्थात कौन ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर कौन हो यार मूल्य भी ग्रेटर देन 0 हो। बास यही पॉइंट को हमको कैच करिबार अछि। जदि ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हो गला तेबे ओ स्क्वायर मूल्य काहाट बड़ हो ओ ई स्क्वायर। बुझीगला कि नहीं जदि ओ एफ स्क्वायर माइनस ओ स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गला ताले कौन हो ओ एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन ओ स्क्वायर। जदि ओ एफ स्क्वायर ग्रेटर देन ओ स्क्वायर हो गला ताले ओ एफ इज ग्रेटर देन ओ ई। हमको एटा ही दरकार थिला देख लो पहले एटा दरकार थिला कि नहीं हमको प्रमाण करिया पे कौन कहितला ओ एफ इज ग्रेटर देन ओ ई। तो हमें प्रमाण कर देले कौन ओ एफ इज ग्रेटर देन ओ ई। बुझीगल पिले भल कि नोट डाउन कर दियो। वर्तमान उपपाद्य 9 उपपाद्य 9 सामान्य कथन कहूँ गोटे वृत्तर दुईटी सर्वसम ज्या केन्द्र ठारे जो कोण उत्पन्न करती से माने सर्वसम। अर्थात वृत्तर दुईटी सर्वसम ज्या अर्थात वृत्तर दुईटी समान ज्या केन्द्र ठारे
ଓ ବିନ୍ଦुଠାରେ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ସମାନ ହେବେ। ତ ଆମେ ବୃତ୍ତକୁଟି ଅଙ୍କନ କରିଛେ, ତା ନାଁ ଦେବା କ'ଣ? ଏସ୍। ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନାଁ କ'ଣ ଦେବା? ଓ। କ'ଣ କରିବା? ଦୁଇଟି ସର୍ବସମଜିଆ। ସର୍ବସମଜିଆ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ଜିଆ ଦୁଇଟିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହୋଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ସର୍ବସମଜିଆ। ଯାହାର ନାଁ ଦେବା କ'ଣ? ଏ ବି ଏବଂ ସି ଡି। କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ଜିଆ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ କେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ? ଏ ଓ ବି କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ସେହିଭଳି ଭାବେ ସି ଡି ଜିଆ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ କେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ? ସି ଓ ଡି କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ସେ ଆମକୁ ମାଗିଛି କ'ଣ? ଏ ଓ ବି କୋଣ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେବ? ସି ଓ ଡି କୋଣ। ଏ ଓ ବି କୋଣ ସର୍ବସମ କ'ଣ ହେବ? ସି ଓ ଡି କୋଣ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆସ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଦତ୍ତ। ଦତ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ପ୍ରଥମେ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। এই ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପିଲା କେବେ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ ଓ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ନେକ୍ସଟ ଏ ବି ଓ ସି ଡି ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମଜିଆ। ଯଦି ଦୁଇଟି ସର୍ବସମଜିଆ ହେଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ? ସି ଡି। ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଡି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଏ ବି ଓ ସି ଡି କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଯଥାକ୍ରମେ କେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି? ଏ ଓ ବି ଓ ସି ଓ ଡି କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଇଗଲା କ'ଣ ଆମର? ଦତ୍ତ। ବୁଝିହେଲା? ଦତ୍ତ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଏସ୍ ବୃତ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କିଏ? ଓ। ଏ ବି ଓ ସି ଡି ବ୍ୟାସ ଭିନ୍ନ ଦୁଇଟି ସର୍ବସମଜିଆ। ଯଦି ସେମାନେ ସର୍ବସମ ତ ସେମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ସମାନ ହେବ। ତ ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଡି। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ଏ ବି ଜିଆ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ କେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ? ଏ ଓ ବି କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ଏବଂ ସି ଡି ଜିଆ କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ କେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ? ସି ଓ ଡି କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ। ତ ଆମକୁ ପ୍ରାମାଣ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଯେଉଁ କୋଣ ଦୁଇଟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ସେମାନେ କ'ଣ ହେବେ? ସର୍ବସମ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଓ ବି କୋଣ ସର୍ବସମ ହେବ କ'ଣ? ସି ଓ ଡି କୋଣ। ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ପରେ ଆମେ ଆସିବା କୋଉଠି? ପ୍ରମାଣ। ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ଯଦି ଏ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଓ ବି ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ସି ଓ ଡି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ସର୍ବସମ କରିଦେବା ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏ ଓ ବି କୋଣ ସର୍ବସମ ସି ଓ ଡି କୋଣ ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରମାଣରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଭେରି ଇଜି। ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଓ ଡି ମଧ୍ୟରେ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଓ ଡି ମଧ୍ୟରେ। ତ ପିଲା ଦେଖ, ଓ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ସି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଓ ଏ ବାହୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ସି ବାହୁ ହେବ। କାହିଁକି? ଏକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତରେ 1000ଟି ବି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ସମାନ ହେବ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖିବା? ଓ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ଡି। ଓ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ଓ ଡି ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ଦୁଇଟା ଯାକ କ'ଣ? ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି କ'ଣ ଲେଖିବା? ଏକ ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ପିଲେ ବୁଝି ହେଉଛି କି ନାହିଁ? ବୁଝି ହେଲା? ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ମୋତେ କହିଲ ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଡି ହେବ କି ନାହିଁ? କାହିଁକି? ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଦୁଇଟି ସର୍ବସମଜିଆ। ଏଟାକୁ ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଇଛୁ? ଦତ୍ତରୁ ପାଇଛୁ। କ'ଣ? ଏ ବି ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସି ଡି ଜିଆର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସହ ସମାନ। ତ ଏଠି କେଉଁ ସର୍ବସମତା ଲାଗିଲା? ଦେଖ, ବାହୁ ଓ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାହୁ। ଓ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ଡି, ଏଠି ବି ଗୋଟେ ବାହୁ। ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସି ଡି, ଏଟା ବି ଗୋଟେ କ'ଣ? ବାହୁ। ତ ଅତଏବ କ'ଣ ଲେଖିଦେବା ଆମେ? ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ସର୍ବସମ କାହା ସହ ହେଲା? ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଓ ଡି। କେଉଁ ସର୍ବସମତା ଲାଗିଲା? ବାହୁ ବାହୁ ବାହୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ କ'ଣ? ବା ସର୍ବସମତା। ବା ସର୍ବସମତା ଅନୁଯାୟୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଓ ଡି କ'ଣ ହେବେ? ସର୍ବସମ ହେବେ। ଯଦି ଏଇ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ, ତେବେ ଏ ଓ ବି କୋଣ ସର୍ବସମ କାହା ସହ ହେଇଯିବ? ସି ଓ ଡି କୋଣ ସହ।
आमको प्रामाण्य ये जिनसटी ही मागिला तो आमर प्रमाण हो गला कौन ए ओ बी कौन सर्वसम सी ओ डी कौन बुझीपार पिले क्लीयरली नोट डाउन कर दियो। उपपाद्य न सरीला एबे आसीबा प्रमेय 2.4 जहा होची कोन उपपाद्य न रो विपरीत कथन। एहार सामान्य कथन कोन कोची देखिबा गोटे वृत्तर दुईटी ज्या द्वारा केंद्र ठारे उत्पन्न कोण दुईटी सर्वसम हेले ज्या दुईटी सर्वसम हेबे। तमे सामान्य कथन देखि वर्तमान चित्रटी अंकन करिबा। तो गोटे वृत्त नैचे वृत्त ना देले एस एवं एहार केंद्र बिंदु ना कोन दबा ओ। गोटे वृत्तर दुईटी ज्या दुईटी अंकन करिबा गोटे ज्यार ना दबा ए बी अन्य एक ज्या अंकन करिबा ता ना दबा कोन सी डी। केंद्र ठारे उत्पन्न कोण गुड़िक दुईटी ज्या द्वारा केंद्र ठारे क्यों कोण उत्पन्न हबो ए ओ बी ए बी ज्या द्वारा क्यों कोण उत्पन्न होला ए ओ बी कोण सी डी ज्या द्वारा क्यों कोण उत्पन्न हबो सी ओ डी कोण। सी हम कोण कहिछि ज्या द्वारा केंद्र ठारे उत्पन्न कोण दुईटी सर्वसम हेले तो एडी ज्या द्वारा क्यों कोण उत्पन्न होला ए ओ बी कोण सी डी ज्या द्वारा क्यों कोण उत्पन्न होला सी ओ डी कोण। सी कोण कहला ए ओ बी कोण सर्वसम कोण हबो सी ओ डी कोण हेले हमको प्रमाण करिया पे कोण हबो ना ए बी इक्वल टू सी डी। तो ए बी ज्या सर्वसम का सब सी डी ज्या सब। तो आसे पहले दत्त लिखिबा दत्तर हम प्रथम सेम जिनिस लिखिबा एस वृत्तरे ओ केंद्र बिंदु एस वृत्तरे ओ केंद्र बिंदु नेक्स्ट लिखिबा कोन ए बी और सी डी व्यास भिन्न दुईटी ज्या ए बी और सी डी कोन व्यास भिन्न दुईटी ज्या। नेक्स्ट टाइम कोन लिखचे कोन दुईटी सर्वसम तो अर्थात कोन ए ओ बी कोन सर्वसम का हबो सी ओ डी कोण। देखो ए ओ बी कोण का सर्वसम हबो सी ओ डी कोण सह। दत्त लिखिदेले पेले वर्तमान हम लिखिबा प्रामाण्य। प्रामाण्य कोन लिखिबा प्रमाण करिबा कोन ज्या दुईटी सर्वसम तो अर्थात कोन ए बी सर्वसम का हबो सी डी सह। आमे प्रमाण करिया कोन ज्या दुईटी सर्वसम तो कोन लिखिबा ए बी ज्या सर्वसम सी डी ज्या। प्रामाण्य सरला वर्तमान आमे आसीबा का प्रमाण पाको। प्रमाण सेम जिनस उपपाद्य न जेई बळी ए उपपाद्य न र विपरीत कथन अर्थात प्रमेय 2.4 भी सही बळी। तो आमे एठी भी कोन करबा दुईटी त्रिभुजर सर्वसमता को नै ए बी इक्वल टू बा ए बी सर्वसम सी डी बोली प्रमाण करिबा। तो त्रिभुज दुईटी कोन तो त्रिभुज ए ओ बी ओ त्रिभुज सी ओ डी मध्य रे आमे कोन करिया ए दुईटी त्रिभुज को सर्वसम बोली प्रमाण करिबा। तो देखो पिले ओ ए इक्वल टू ओ सी हां कि नै ओ ए इक्वल टू ओ सी काहे कि एमाने होचंती एक वृत्तर व्यासार्ध। ए दुईटी कोन होचंती एक वृत्तर व्यासार्ध। तापर आमे दत्तर कोन पाइছে देखो ए ओ बी कोन सर्वसम सी ओ डी कोन ए ओ बी कोन खास सर्वसम सी ओ डी कोन कोठ पाइछु दत्तर। नेक्स्ट आसी जिबा पुनी ओ बी बाहु इक्वल टू ओ डी बाहु ओ बी बाहु खास समान ओ डी बाहु सो काहे कि एमाने भी होचंती गोटे वृत्तर व्यासार्ध। केते इजी देखो प्रथमे कोन कले ओ ए बाहु इक्वल टू ओ सी बाहु काहे कि एमाने होचंती गोटे वृत्तर व्यासार्ध। नेक्स्ट आमे दत्तर पाइथलु कोन ए ओ बी कोन इक्वल टू बा सर्वसम सी ओ डी कोन ए ओ बी कोन सर्वसम सी ओ डी कोन कोठ पाइथलु दत्तरु। नेक्स्ट कोन कले ना ओ बी बाहु इक्वल टू ओ डी बाहु पुणी कोठ पाइलु गोटे वृत्तर व्यासार्ध। तो देखो ये क्यों सर्वसमता लगिबो बाहु कोण बाहु अर्थात क्यों सर्वसमता अनुसार त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज सी ओ डी सर्वसम हेबे ना बा को बा सर्वसमता अनुसार त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी कोन हेबे सर्वसम हेबे। तो उत्तर भी लिखि दबा त्रिभुज ए ओ बी
सर्वसम त्रिभुज सीओडी क्यों सर्वसमता अनुसायी बा को बा सर्वसमता सर्वसमता अनुसायी त्रिभुज एओबी और त्रिभुज सीओडी कौन है सर्वसम जदि ए दुईटी त्रिभुज सर्वसम हो गले तो ऑटोमेटिक कौन है ए बी ज्या सर्वसम कौन है सी डी ज्या तो लिखिद आम कौन ए बी ज्या सर्वसम सी डी ज्या ताकू प्रामाण्य आम से जिन लिखी कि नहीं ए बी ज्या सर्वसम सी डी ज्या बोली तो आम त्रिभुज दुईटी को सर्वसम कर प्रमाण कौन करदे ना ए बी ज्या सर्वसम सी डी ज्या बुझीगला पे नोट कर दियो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।